Hello everyone. Hope you all are fit and fine at your places. So, coming to our topic, the last we have done the basic things that how electrochemical cell works. What is anode? What is cathode? What is the sign on anode? Negative anode. Oxidation process is taking place and positive cathode reduction process is taking place. Now, how we are representing on paper an electrochemical cell. हमने लिखी थी सेल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर और you can write it as zinc plus copper ions gives zinc ions plus copper, where zinc is showing oxidation and copper ions are reduced to copper. Now, how to represent this cell? Representation of the cell is, first we are writing the oxidation half cell, then we are writing the reduction half cell, and then both the cells are connected with the help of salt bridge, as you all know. Oxidation half cell, zinc is converted into zinc 2 positive ions. Whatever is the concentration of the zinc ions we are writing here. जब आप standard conditions की बात करते हैं तो हम यहाँ 1 molar concentration लिखते हैं. Otherwise, if there are some other conditions than standard conditions, तो यहाँ कोई भी concentration हो सकती है. Then you have copper ions which are reduced to copper, and the concentration of copper ions can be C2, whatever is the concentration. So this is the oxidation half cell and this is the reduction half cell, and the two half cells are joined together by two parallel lines, which is basically showing the salt bridge. So this is the representation of the electrochemical cell. Any electrochemical cell can be written as first oxidation half, then reduction half, then the two halves are represented. So instead of giving you the equation, you can be given this representation from which you can easily detect or observe that which one is the oxidation half cell and which one is the reduction half cell. Now coming to some other terms, what is electrode potential? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की. अगर किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है तो आप उसको उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह देते हैं. अगर उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है तो आप उसको उसका रिडक्शन पोटेंशियल कह देते हैं. Oxidation potential or reduction potential. And when you are connecting the two electrodes with different electrode potentials, only then that will result in the production of electricity. तभी एक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम कर पाएगी और दूसरी इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम कर पाएगी. एक ऑक्सीडेशन शो कर पाएगी और दूसरी रिडक्शन शो कर पाएगी. Means there should be some difference in the electrode potential, and we term that difference in electrode potential as EMF of that particular cell. EMF, or you can call it as, this can also be written in capital letters, EMF, that is electromotive force. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज़ है? बेसिकली दैट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स इन ए सेल व्हेन द सेल इज नॉट वर्किंग और व्हेन द सेल इज नॉट प्रोड्यूसिंग द करंट. दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ ऑफ द सेल. इस ईएमएफ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो ईएमएफ ऑफ ए सेल इज calculated as EMF of the reduction half cell minus EMF of the oxidation half cell, or sometimes it is written as E right minus E left. Right क्या है? हम representation के
की फॉर्म में देखें तो राइट साइड पे हमने रिडक्शन हाफ लिखा है और लेफ्ट साइड पे हमने ऑक्सीडेशन हाफ लिखा है। तो राइट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड विच इज अंडरगोइंग रिडक्शन, लेफ्ट मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इनफैक्ट हम यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे फॉर द इलेक्ट्रोड विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। हम यहाँ लेके चलते हैं हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को, क्योंकि दो टर्म्स एक जैसी टर्म्स को ही आप आपस में माइनस करेंगे। अब यहाँ हमने जो ये लिखा है रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल को, ई नॉट सेल, this is E naught. Why we are writing standard EMF of the cell? Because that is taken under standard conditions. Standard conditions क्या है? 298 केल्विन आपका टेम्परेचर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो भी 1 मोलर होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट, और ये E नॉट क्या है? ये दोनों सेल्स के, दोनों हाफ सेल्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, चाहे उन पे रिडक्शन हो रहा है या उन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ द टू हाफ सेल्स इज गिविंग यू द ईएमएफ ऑफ द सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, दैट इज ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास ये वैल्यूज़ आती कहाँ से हैं। आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है जहाँ हमने रिडक्शन पोटेंशियल्स को अरेंज किया है, बट वो सिंगल इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ से आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास पीछे लास्ट टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया कि हमने यहाँ सपोज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया और यहाँ पे ले लिया जिंक इलेक्ट्रोड, विल इट वर्क? क्या यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी? नहीं होगी, क्योंकि जिंक जिंक के साथ ही कनेक्टेड है, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक जैसा है, तो यहाँ ना लॉस है और ना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली अगर दूसरे हाफ सेल में हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर रॉड रख दे तो भी यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, अनटिल अनलेस ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्ट नहीं होती, जिनके दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स डिफरेंट हैं, तब तक रिएक्शन नहीं होगी, या तब तक इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होंगे, तब तक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। राइट नाउ द थिंग हियर इज, अगर हम यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे हैं तो वो कहाँ से आया? हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ से आई? दैट इज ऑल्सो, क्योंकि हम सिंगल का तो यहाँ निकाल ही नहीं सकते, सो दैट इज ऑल्सो इन कंपैरिजन ऑफ ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। यहाँ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से उसको कंपेयर करते हैं। अब वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जिससे कंपेयर किया जा रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरी इलेक्ट्रोड का, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आप जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं दैट इज 1 मोलर एसिड सॉल्यूशन, और यहाँ आपके पास एक न्यूट्रल प्लैटिनम कोटेड सरफेस है, इसके साथ एक कॉपर वायर कनेक्टेड है जो यहाँ कनेक्ट होगा, और इसमें से हम पास करते हैं हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर पे, दैट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन, और यहाँ आपके पास ये रिएक्शन हो गया। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है डिपेंड करता है अब ये रिडक्शन हाफ की तरह काम करेगा या ऑक्सीडेशन हाफ की तरह काम करेगा। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमने किस दूसरी इलेक्ट्रोड के साथ इसको कनेक्ट किया है। ये सॉल्ट ब्रिज से हम इसको सॉल्यूशन को कनेक्ट करते हैं। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
अगर किसी ऐसी इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया जाए जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो रिएक्टिव होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगी, जो लेस रिएक्टिव होगा उस पर रिडक्शन होगी, तब आपका इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करेगा। और दूसरा इलेक्ट्रोड जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, वो काम करेगा एनोड की तरह। और इससे रिवर्स हो जाए, अगर कोई ऐसी इलेक्ट्रोड हो जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हो, जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगी तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगी, और दूसरी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो जाएगा जो कैथोड की तरह काम करेगी। जब ऐसा होगा तो आप यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग की हेल्प से ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको ई नॉट सेल में रखेंगे। ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज 0 वोल्ट, दैट इज टेकन एज 0 वोल्ट। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ई नॉट ऑफ द सेल, सपोज x वोल्ट ई नॉट आ गया, दैट इज इक्वल टू ई नॉट राइट। ई नॉट राइट मतलब जिस पे रिडक्शन हो रही है, सपोज करते हैं हाइड्रोजन पे अगर रिडक्शन हो रही थी तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक आपके पास आ जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन आपके पास 0 हो गया, x हमारे पास यहाँ आया था माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव और Zn, यहाँ से आपके पास जिंक की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड बाय कंपेयरिंग इट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड whose electrode potential is taken as 0. In comparison to that standard hydrogen electrode, we are taking the electrode potentials of other electrodes.